یہ اس زمانے کی بات ہے جب ریت بھی زبان رکھتی تھی اور تلوار انصاف کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ یمن کی سرزمین پر ایک ایسا بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام سن کر دشمن بھی سر جھکا لیتے تھے اور غریب کے چہرے پر امید جاگ اٹھتی تھی۔ وہ تھا حاتم طائی۔ اس کی سخاوت کے قصے دور دور تک مشہور تھے۔ کہتے ہیں اگر اس کے دربار میں کوئی بھوکا داخل ہوتا تو وہ پہلے اسے کھانا دیتا، پھر سوال پوچھتا۔ اگر کوئی دشمن بھی پناہ مانگ لیتا تو حاتم اس کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کرتا۔ ایک دن حاتم طائی شکار کے ارادے سے اپنے محبوب گھوڑے ابرش پر سوار ہو کر جنگل کی طرف نکلا۔ وہ دن خزاں کا تھا، درختوں کے پتے زرد ہو رہے تھے، ہوا میں اداسی گھلی ہوئی تھی۔ اچانک خاموشی کو چیرتی ہوئی سسکیوں کی آواز آئی۔ حاتم نے گھوڑا روکا۔ وہ آواز کسی ایسے دل کی تھی جو ٹوٹ چکا ہو۔ وہ آگے بڑھا تو دیکھا ایک خوبرو نوجوان، آنکھوں میں آنسو، ہاتھ کانپتے ہوئے درخت کی شاخ سے رسی باندھ رہا ہے۔ خبردار نوجوان، زندگی کمزوروں سے نہیں بہادروں سے مانگی جاتی ہے۔ بتا کون سا غم تجھے موت کے قریب لے آیا؟ نوجوان پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اے اجنبی، میرا نام منیر شامی ہے۔ میں شاہ برزخ کی بیٹی حسن بانو سے محبت کرتا ہوں، مگر وہ محبت نہیں، عقل آزماتی ہے۔ اس نے نکاح کے لیے 7 سوال رکھے ہیں، جو ان کے جواب لائے گا وہی اس کا شوہر ہوگا۔ میں ناکام ہو چکا ہوں، اب میرے لیے صرف موت باقی ہے۔ حاتم طائی نے نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو میدان جنگ میں ہوا کرتی تھی۔ منیر، اگر سوال 7 ہیں تو جواب بھی 7 ہوں گے، اور اگر راستہ موت کا ہے تو میں اس راستے پر چلنا جانتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں حاتم طائی تیرا کام کرے گا۔ پہلا سوال۔ سوال کے الفاظ: وہ کون سی چیز ہے جسے انسان ایک بار دیکھ لے تو دوبارہ دیکھنے کی ہوس میں اپنی عقل، ایمان اور ضمیر سب قربان کر دیتا ہے؟ حاتم نے گھوڑے کی لگام تھامی اور لمبا سانس لیا۔ یہ سوال آسان نہیں، اس کے پیچھے خون، ہوس اور فریب چھپا ہے۔ حاتم کئی دن اور راتیں سفر کرتا رہا۔ بالآخر وہ ایک ایسی وادی میں داخل ہوا جہاں سورج کی روشنی بھی مدھم پڑ جاتی تھی۔ اس وادی کا نام تھا وادی حزن۔ کہتے تھے یہاں سے جو گزرا وہ یا تو پاگل ہو گیا یا لاش بن کر نکلا۔ اچانک چاروں طرف سے قہقہے گونجنے لگے۔ ریت کے ٹیلوں کے پیچھے سے 1 2 3 40 خونخوار ڈاکو نکل آئے۔ ان کے چہروں پر درندگی، ہاتھوں میں زنگ آلود تلواریں۔ ڈاکوؤں کا سردار آگے بڑھا۔ اے مسافر، یہ وادی ہماری ہے، یا تو سب کچھ دے دے یا یہیں دفن ہو جا۔ حاتم گھوڑے سے اترا، تلوار نیام سے نکالی۔ اس کی آواز میں لرزش نہیں تھی۔ میں حاتم طائی ہوں اور میں نہ دولت دیتا ہوں۔ سردار نے چیخ کر حملے کا حکم دیا۔ چاروں طرف سے تلواریں برسنے لگیں۔ حاتم گھوڑے پر چھلانگ لگا کر سوار ہوا۔ ابرش کی ٹاپیں بجلی بن گئیں۔ 1 بار 2 بار تلواریں ٹوٹنے لگیں۔ خون ریت میں جذب ہونے لگا۔ سردار نے پوری طاقت سے وار کیا۔ حاتم گھوڑے کی پیٹھ سے لٹک گیا۔ وار ہوا میں گیا۔ اگلے لمحے حاتم کی تلوار چمکی اور سردار کا ہاتھ جسم سے جدا ہو گیا۔ چیخیں، گرد، خون۔ آخرکار 40 کے 40 ڈاکو وادی میں خاموش پڑے تھے۔ حاتم نے تلوار صاف کی اور آگے بڑھ گیا۔ ہوس کی بستی۔ کچھ دور جا کر ایک عجیب بستی ملی۔ لوگ آنکھیں پھاڑے ایک محل کی دیوار کو دیکھ رہے تھے۔ دیوار پر ایک جادوئی تصویر تھی۔ جو ایک بار دیکھتا وہ دوبارہ دیکھے بغیر چین نہ پاتا۔ لوگ بھوکے مر رہے تھے مگر نظریں ہٹتی نہ تھیں۔ حاتم سمجھ گیا، یہ ہے وہ چیز، دنیا کی چمک جو ہوس بن کر انسان کو غلام بنا لیتی ہے۔ حاتم نے پوری قوت سے تلوار ماری۔ تصویر ٹوٹ گئی۔ لوگ ہوش میں آ گئے۔ بستی آزاد ہو گئی۔ پہلا جواب حاصل۔ حاتم نے آسمان کی طرف دیکھا۔ جو ایک بار دیکھو تو دوبارہ دیکھنے کی ہوس بن جائے، وہ ہے دنیا کی جھوٹی چمک۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا۔
एक पुरानी कश्ती लंगर अंदाज थी। मल्लाह बूढ़ा था, आंखों में खौफ बसा हुआ। हातिम ने पूछा, ए बाबा, इस समंदर के पार क्या है? बूढ़ा लरजती आवाज में बोला, वहां आजमाइश है। जो गया वो या सीख कर लौटा या कभी वापस ना आया। हातिम कश्ती में सवार हो गया। कयामत खीज तूफान। रात के पिछले पहर आसमान सियाह हो गया। बादल गरजे, हवाएं चीखीं और समंदर बिभर गया। कश्ती लकड़ी के खिलौने की तरह उछलने लगी। अचानक समंदर फट गया। आदमखोर अजदहा का ज़हूर। लहरों के बीच से एक देव हैकल अजदहा उभरा। आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। दांत नेज़ों जैसे, सांस से जहर टपक रहा था। वो आदमखोर था। अजदहे ने जोरदार चीख मारी और कश्ती पर झपट पड़ा। एक ही वार में कश्ती टूट गई। मल्लाह चीखता हुआ लहरों में गायब हो गया। समंदर में अकेला हातिम। हर तरफ मौत थी। हातिम एक टूटे हुए तख्ते पर खड़ा था, एक हाथ में तलवार, दूसरे में यकीन। अजदहा दोबारा लपका। इस बार हातिम पीछे नहीं हटा। अजदहे ने मुंह खोला तो लगता था पूरी दुनिया निगल लेगा। हातिम ने आखिरी लम्हे में छलांग लगाई और पूरी ताकत से अपनी जहर आलूद तलवार अजदहे के हल्क में उतार दी। अजदहा तड़पा। समंदर सुर्ख हो गया। लहरें दीवानी हो गईं। आखिरकार वो देव हैकल मखलूक पानी में डूब गई। खामोशी छा गई। नेकी का राज। सुबह की रोशनी में हातिम एक सुनसान साहिल पर आ लगा। वो निढाल था मगर जिंदा था। कुछ दूर एक बुजुर्ग बैठे थे जो चुपचाप कीमती हीरे दरिया में फेंक रहे थे। हातिम हैरान रह गया। ए बुजुर्ग, ये तुम क्या कर रहे हो? ये दौलत तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। बुजुर्ग मुस्कुराए। बेटा, ये नेकी है। नेकी कभी वापस नहीं देखी जाती। जो अल्लाह के लिए दी जाए उसका बदला इसी दुनिया में नहीं मांगा जाता। हातिम की आंखों में आंसू आ गए। दूसरे सवाल का जवाब। हातिम घोड़े पर सवार हुआ, दिल मुतमईन था। उसने खुद से कहा, वो अमल जिसका सिला दुनिया में नहीं मिलता वो है खालिस नेकी, जो अल्लाह के लिए की जाए। समुंदर पीछे रह गया और दूसरी आजमाइश मुकम्मल हो गई। संगे इबरत की सरजमीन। कई दिन के सफर के बाद हातिम एक वीरान शहर में दाखिल हुआ। यह शहर खामोश था, हद से ज्यादा खामोश। गलियां, बाजार, महल सब मौजूद, मगर कोई सांस लेता इंसान नहीं। हर तरफ पत्थर के बने हुए इंसान खड़े थे। कोई हाथ उठाए दुआ में, कोई मुंह खोले चीख में, कोई मां जिसकी गोद में पत्थर का बच्चा था। हातिम के दिल पर बोझ सा आ गया। ये शहर किसी बद्दुआ का शिकार है। अचानक हवा में कहकहा गूंजा। वो कहकहा ऐसा था जैसे आग हंस रही हो। काली जादूगरनी का ज़ुहूर। महल की छत से काली धुएं में लिपटी एक औरत नमूदार हुई। उसके बाल सांपों की तरह लहरा रहे थे, आंखें अंगारों की मानिंद और हाथ में जलती हुई लाठी। वो थी मलिकाए बदी, ज़हरा गैन। वो बोली, ए मुसाफिर, ये शहर मेरी सल्तनत है। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने बदी की और अब अपनी ही बदी बन चुके हैं। हातिम ने तलवार निकाली। अगर ये तेरा इंसाफ है तो आज तेरा हिसाब होगा। जादूगरनी कहकहा लगाकर हंसी। बदी का अंजाम देखना है तो मेरे सामने ठहर। आग और सायों की जंग। जादूगरनी ने लाठी जमीन पर मारी। जमीन शक हो गई। आग के शोले सांपों की तरह लपकते हुए हातिम की तरफ बढ़े। हातिम ने फौरन वो तिलिस्मी ढाल सामने की जो एक बुजुर्ग ने दूसरे सवाल के बाद दी थी। आग ढाल से टकराई और पलटकर जादूगरनी की तरफ लपक गई, मगर वो तैयार थी। उसने हाथ उठाया और आग को स्याह धुएं में बदल दिया। धुएं से सायादार मखलूक निकली, बदी के मुजस्समे। सायों के लश्कर से मुकाबला। वो साए तलवारों, खंजरों, जंजीरों से लैस थे।
हर साया किसी इंसान की बदी का अक्स था। हातिम ने अब्रश को एड़ लगाई। अब्रश चीखा और बिजली की तरह दौड़ा। एक साया कटा तो चीख उभरी, जैसे किसी इंसान की रूह आजाद हो गई हो। हातिम हर वार के साथ अल हक कहता जाता। साए कम होते गए, मगर जादूगरनी की ताकत बढ़ती गई। बदी का पलटना। आखिरकार जादूगरनी ने आखिरी वार किया। उसने आसमान से सयाह आग का गोला गिराया। पूरा शहर जलने लगा। हातिम ने आंखें बंद कीं और दिल से कहा, ऐ रब, अगर बदी का अंजाम बदी है तो इसका फैसला तू ही कर। वो ढाल उठाकर आग की तरफ बढ़ा। आग टकराई और पलट गई, सीधी जादूगरनी के सीने में जा लगी। एक खौफनाक चीख बुलंद हुई। इंजामे बदी। जादूगरनी जलने लगी। उसका जिस्म पत्थर बनता गया और आखिरकार वो खुद एक पत्थर का मुजस्समा बन गई। इसी लम्हे पूरा शहर लरज उठा। पत्थर के इंसानों में हरकत हुई। सांसों की आवाज आई। आंखें नम हो गईं। लोग जिंदा हो गए। एक बूढ़ा आगे बढ़ा और बोला, ए हातिम, हमने जुल्म किया, बदी की, और वही बदी हम पर पलट आई। तूने हमें इबरत बनाकर आजाद किया। तीसरा जवाब, हकीकत का ऐलान। हातिम ने शहर से निकलते हुए कहा, सुन लो दुनिया वालों, जो बदी करता है वो किसी और को नहीं, खुद अपने मुकद्दर को जख्मी करता है। बदी का अंजाम हमेशा बदी ही होता है। उसने घोड़े की लगाम खींची और अगली आजमाइश की तरफ रवाना हुआ। आसमान पर बादल गरजे, जैसे हक की गवाही दे रहे हों। हसन बानो के दरबार में लिखा हुआ चौथा सवाल ये था, वो कौन सी चीज है जो कमजोर जबान से निकले तो जान ले ले और मजबूत दिल से निकले तो दरिंदों को भी गुलाम बना दे। हातिम ताई ने सवाल पढ़ा तो उसकी पेशानी पर हल्की सी शिकन आई। वो आहिस्ता बोला, ये तलवार का सवाल नहीं, ये दिल का इम्तिहान है, ये सच का सवाल है। अब्रिश ने हिनहिना कर जैसे खतरे का ऐलान किया, जुल्मत की सल्तनत। हातिम कई दिनों के सफ़र के बाद एक ऐसी सल्तनत में दाखिल हुआ जहां हवा में खौफ बसी हुई थी और दीवारें चीखों की गवाह थीं। ये थी सल्तनत कहर, जहां का बादशाह शाह दरिंदा कहलाता था। कहते थे, यहाँ सच बोलने वालों की ज़बान काट दी जाती है और हक कहने वालों को दरिंदों के आगे डाल दिया जाता है। शहर में दाखिल होते ही हातिम ने देखा, चौराहे पर लाशें लटक रही थीं। लोग नजरें झुकाए चलते थे। माँ बाप बच्चों को सच बोलना सिखाने से डरते थे। हातिम का दिल दहल गया। ये जुल्म खामोशी से नहीं मरता, इसे सच की तलवार चाहिए। जालिम बादशाह का दरबार। हातिम शाही दरबार में पहुंचा। सोने का तख्त मगर खून से तर, अर्द गिर्द जल्लाद और पिंजरे में कैद भूख से पागल शेर। बादशाह ने तंजिया हंसी के साथ कहा, ए अजनबी, यहाँ सच बोलने की कीमत जान है। बता, तू क्यों आया है? हातिम ने गर्दन सीधी की। आंखों में खौफ का नाम न था। मैं सच की तलाश में आया हूं और जालिम को आईना दिखाने। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने ऐसी जुर्रत न की थी। सच की सजा। बादशाह गुस्से से चीख उठा, इसे दरिंदों के आगे डाल दो। लोहे के दरवाजे खुले, पिंजरे टूटे, भूख से बिफरे शेर गर्राते हुए बाहर निकले। दरबार के सुतून लरजने लगे, लोग नजरें फेरने लगे, मगर हातिम ताई अपनी जगह जमकर खड़ा रहा। न तलवार निकाली, न ढाल उठाई, बस दिल में सच रखा और जुबान पर हक। दरिंदों का मौजज़ा। पहला शेर लपका, दूसरा धाड़ता हुआ आया, तीसरा जमीन चीरता हुआ दौड़ा। मगर जैसे ही वो हातिम के करीब पहुंचे, अचानक हुर्राहट खामोशी में बदल गई। आंखों की आग बुझ गई। शेर रुक गए, फिर एक एक करके हातिम के कदमों में बैठ गए। किसी ने उसके पांव चाटने शुरू कर दिए,
किसी ने सर जमीन पर रख दिया। पूरा दरबार कांप उठा। सच की फतह। बादशाह लरसते हुए तख्त से उठा। ये क्या है? ये इंसान है या फरिश्ता? हातिम ने बुलंद आवाज में कहा, ये सच की ताकत है। झूठ के दरबार में सच दरिंदों को भी झुका देता है। दरबार में मौजूद जल्लादों के हाथ कांप गए। अवाम की आंखों में आंसू आ गए। इसी लम्हे शाहे दरिंदा तख्त से गिर पड़ा। उसका जुल्म उसी के खौफ में दफन हो गया। चौथे सवाल का जवाब। हातिम ने शहर से निकलते हुए आसमान की तरफ देखा और कहा, वो चीज जो कमजोर जबान से निकले तो जान ले और मजबूत दिल से निकले तो दरिंदों को भी गुलाम बना दे, वो है सच्चाई। मंजिले 5, कोहे निदा, पुकारने वाला पहाड़। सवाल, वो कौन सी चीज है जो मौत का बुलावा है और हर जानदार को एक दिन पकड़ कर ले जाती है? हातिम ताई ने 5वें सवाल की तलाश में नई राह इख्तियार की। उसका सफर बुलंदो बाला पहाड़ों की तरफ था, जहां हवा इतनी तेज थी कि इंसान के सांस छूट जाते। ये पहाड़ कोहे निदा कहलाता था, क्योंकि यहां से गैब से आने वाली आवाजें सुनती थी, जो हर मुसाफिर के दिल में खौफ और हिम्मत के इम्तिजाज पैदा कर देती थी। पहाड़ की खतरनाक राह। रास्ते में बादल घने थे, पत्थरों से खतरनाक जलजले के आसार थे और हर कदम पर छुपे हुए दरिंदे और सांप की तरह फिसलने वाले राख के पत्थर मौजूद थे। हातिम ने घोड़े अब्रश की लगाम मजबूत पकड़ी और कदम कदम पर अपने इर्द गिर्द की चीजों को जांचा। हवा के जिन्नात की मौजूदगी महसूस हुई। ये छोटे, नजर न आने वाले मगर ताकतवर मखलूक थे, जो हवा की मानिंद इधर उधर हरकत करते और बेखबरी में मुसाफिर पर हमला कर देते। हवा के जिन्नात से मार का। हातिम ने अपनी तलवार, तिलिस्मी चमकदार तलवार निकाली, जो हर छोटे बड़े जादू और खतरे को भांप लेती थी। जिन्नात ने पहले एक सर के ऊपर धावा बोला, लेकिन हातिम ने तलवार को हवा में घुमाया। तलवार की हरकत से हवा में एक रोशनी पैदा हुई, जो जिन्नात की आंखों में तकलीफ पैदा करने लगी। जिन्नात चीख कर इधर उधर भागने लगे, लेकिन कुछ हातिम के इर्द गिर्द घेरा बनाकर हमला कर गए। हातिम ने अपने हाथ की फुर्ती और घोड़े की तेज छलांग के साथ एक एक करके जिन्नात के जिस्म को तलवार से जर्ब दी। जिन्नात के आवाजों की गूंज पहाड़ों में ऐसे फैल रही थी जैसे हजारों जंगी तबल बज रहे हों। खरकार, जिन्नात की फौज खत्म हो गई और हातिम ने सच्चाई के साथ कदम बढ़ाया। राज़े पहाड़। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर हातिम ने महसूस किया कि आवाजें महज आवाजें नहीं, बल्कि एक इंतहाई खतरनाक जादू का नतीजा है। ये जादू मौत की पुकार था, हर जानदार को एक दिन पकड़ने वाला। हातिम ने दिल से दुआ की और समझा कि मौत का बुलावा हकीकत है, मगर खौफ या जल्दी से लड़ना इंसान की जिंदगी की कदरदानी नहीं बढ़ाता, बल्कि अक्ल व हिम्मत और सब्र के जरिए उसका सामना करना चाहिए। इम्तिहान की आखिरी घड़ी। इस पहाड़ पर पहुंचते ही हातिम की आंखों के सामने एक मंजर आया। एक चट्टान के अंदर छुपी हुई जादुई कंदील, जो हर आवाज को बढ़ा रही थी। चट्टान के अंदर छुपे हुए छोटे छोटे पहाड़ी जिन्नात और हवा की शिद्दत, हर चीज एक साथ हातिम पर हमला करने लगी। हातिम ने घोड़े से छलांग लगाई, तलवार हवा में घुमाई और एक जादुई दायरा बनाया, जो जिन्नात को पकड़कर एक जगह महदूद कर देता। फिर उसने अपनी अक्ल और बसीरत के साथ कंदील की जड़ पर वार किया और एक जोरदार धमाका हुआ। सदा रुक गई, पहाड़ खामोश हो गया और मौत की पुकार थम गई। 5वां जवाब हासिल। हातिम ने जमीन पर अपने हाथ रखे और आसमान की तरफ देखा। ये है मौत की हकीकत, जिससे कोई बच नहीं सकता, लेकिन जिसने अक्ल, हिम्मत और सब्र के साथ कदम रखा, वो इसका सामना कर सकता है। पहाड़ से उतरते हुए हातिम ने 5वां जवाब अपने दिल में महफूज कर लिया और अगली मंजिल की तरफ रवाना हुआ। वो कौन सा कीमती मोती है जो इंसान की बहादुरी और जहानत की पहचान है? हातिम ताई ने 6ठे सवाल की तलाश में अपनी राह इख्तियार की, जो उसे ज़ेरे ज़मीन गारों तक ले गई। ये गारें इतनी तारीक और ख़तरनाक थीं कि एक छोटी सी रोशनी भी गुम हो जाती। हर गोशा सांपों और मुख्तलिफ जादुई मखलूक़ात से भरा हुआ था। हातिम ने अपने घोड़े अब्रश को एक महफूज जगह पर बांधा और अपनी मशाल चलाकर गार के अंदर दाखिल हुआ। सांपों की फौज,
जैसे ही हातिम ने पहला कदम रखा, सैकड़ों सांप उसे घेरने लगे। उनके जहरीले दांत, चमकदार आंखें और लंबी लंबी ज़बानें एक खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। सांपों के बादशाह ने धावा बोला, जिसके ताज में वो अजीम शान कीमती मोती जड़ा हुआ था। मार्का। हातिम ने मशल को दाएं हाथ में पकड़ा और तलवार को बाएं हाथ में। हर कदम पर सांप हमला कर रहे थे, लेकिन हातिम की फुर्ती और दानिश ने उसे एक कदम आगे रखा। मशल की रोशनी से सांपों की आंखें जल रही थीं और वो पीछे हट रहे थे, लेकिन बादशाह ने अपनी ताकत से हातिम पर हमला किया। हातिम ने तलवार को एक जोरदार हरकत दी और बादशाह का सर कलम कर दिया। बादशाह के ताज से वो अजीम मोती गिर पड़ा। हातिम ने उसे उठाया, दिल में जाना कि ये मोती सिर्फ बहादुरी और अक्ल की पहचान है। ये मोती छठे जवाब का हिस्सा था और हातिम ने उसे महफूज कर लिया। मंजिले हफ्तम, हम्माम बाद गर्द। सवाल, आखिरी सवाल, वो ताकत जो हर कैदी और मजलूम की आजादी की कुंजी है। 7वां सवाल का पता हातिम को एक घूमते हुए हम्माम में मिला, जहां एक लोहे का देव खड़ा था। ये देव निहायत ताकतवर था और किसी को करीब नहीं आने देता था। आखिरी मार्का। हातिम ने गौर किया कि देव की ताकत उसकी नाफ में छिपे एक नीलम में है। हातिम ने ऊंची छलांग लगाई, तलवार की पूरी ताकत से वार किया और नीलम को तोड़ दिया। धमाका। नीलम टूटते ही एक जोरदार धमाका हुआ। हम्माम का घूमना रुक गया और तमाम कैदी आजाद हो गए। हातिम ने सब कैदियों को आजाद कराया और 7वां जवाब हासिल किया। 7 साल बाद हातिम ताई तमाम 7 जवाबात और कीमती मोती लेकर हसन बानो के दरबार में दाखिल हुआ। शहजादी दंग रह गई, क्योंकि आज तक कोई भी इन सवालात से जिंदा वापस नहीं आया था। हसन बानो ने कहा, हातिम, तुमने सब कुछ मुकम्मल कर दिखाया। आज से तुम मेरी जिंदगी के हीरो हो। हातिम ने मुस्कुराकर कहा, नहीं शहजादी, मैं ये मुहिम अपने लिए नहीं बल्कि अपने दोस्त मुनीर शामी के लिए सर की है। अगर तुम वाकई सखावत की कदर करती हो तो इस नौजवान से निकाह कर लो। शहजादी ने सर झुकाया और मुनीर शामी से निकाह कर लिया। हातिम फिर अपने घोड़े पर सवार हुआ और नई मंजिलों की तरफ रवाना हुआ, ताकि किसी और मजलूम की मदद कर सके। इस अजीम दास्तान से हमें ये सबक मिलता है कि सच्चाई, हौसला और नीयत अगर मजबूत हो तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। लालच, हवस और गुरूर इंसान को तबाही की तरफ ले जाते हैं, जबकि कुर्बानी और इज़ार इंसान को अजमत बख्शते हैं। हातिम ताई ने हमें सिखाया कि असल ताकत तलवार में नहीं बल्कि किरदार में होती है। जो शख्स दूसरों के लिए खड़ा हो जाता है, कुदरत खुद उसके रास्ते आसान कर देती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि मुश्किल रास्ते वही चुनते हैं जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं। अगर आपको हमारी ये दास्तानी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ीद शानदार, सबक आमूज और तारीखी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमारी मेहनत की सबसे बड़ी पहचान है।